Security market line. This is the discussion of financial management and it is 142nd module. SML or security market line is actually a line which is drawn between two variables. If you remember, this is SML equation is one that we discussed while we were going through the CAPM model. वहाँ पर हमने इस बात का जिक्र किया था कि जो इक्वेशन कैपएम मॉडल की है वो असल में SML इक्वेशन है, वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन इक्वेशन है. सो टू अंडरस्टैंड SML वी नीड टू रिमेंबर और रिकॉल दैट कैपएम इक्वेशन. और कैपएम इक्वेशन में हम एक तरफ रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं विच इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड दैट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल. And on the right side of the equation, we take the risk-free rate of return, which is actually the intercept. हमने इसकी कुछ बात पहले की थी. Intercept असल में y-axis के ऊपर वो वैल्यू है जबकि x-axis के ऊपर वैल्यू 0 हो जाए. यानी अगर हम x-axis के ऊपर एक वेरिएबल लेते हैं और y एक्सिस के ऊपर भी एक और वेरिएबल लेते हैं और जब x एक्सिस पे वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो क्या y एक्सिस पर भी उस वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाती है? अगर ऐसा है तो इंटरसेप्ट 0 होगा. लेकिन अगर x एक्सिस पे लिए जाने वाले वेरिएबल की 0 वैल्यू के ऊपर y एक्सिस पर लिए जाने वाले वेरिएबल की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है 2, 3, 4, 5 तो वो वैल्यू इंटरसेप्ट कहलाती है. यानी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x 0 भी हो जाए तब भी डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. नाउ दैट इज द इक्वेशन ऑफ कैपएम, दैट इज R expected is equal to RF, which is the risk free rate of return plus the risk premium multiplied by beta. Suppose in that equation, if risk premium is 0, then the whole factor risk premium multiplied by beta will be equal to 0. And in that case, the equation will be expected return is equal to risk-free rate of return. यानी किसी इन्वेस्टर का रिटर्न 0 नहीं होता अगर उसका रिस्क लेवल 0 भी हो जाए. एंड दैट इज वाई RF इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड दिस RF इज एक्चुअली द इंटरसेप्ट. यही RF है असल में जो कि वो वैल्यू को इंडिकेट करता है कि जो इन्वेस्टर का रिटर्न होगा विदाउट टेकिंग अ रिस्क. सो हाउ डू वी मेक दिस इक्वेशन? हाउ डू वी एक्चुअली रिग्रेस दिस independent market return or risk premium with the dependent variable of return? That is through what is called security market line equation. Security market line असल में एक ग्राफ है, एक लाइन है जो ड्रॉ की जाती है between two variables. वो दो वेरिएबल क्या हैं? वो दो वेरिएबल हैं बीटा which is the independent variable and the return of the investor. यानी SML को ड्रॉ करते वक्त हम x एक्सिस के ऊपर बीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं. यानी अगर बीटा की वैल्यू 1 होगी तो इन्वेस्टर का रिटर्न कितना होगा. अगर बीटा की वैल्यू 1.1 हो जाएगी तो इन्वेस्टर का रिटर्न कितना होगा. अगर बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इन्वेस्टर का रिटर्न कितना होगा. अभी हमने जैसे डिस्कस किया, even if the beta values becomes 0, that doesn't mean that the return of the investor will be 0, but it will be minimum, and that minimum rate of return is called the risk-free rate of return. Let's have a look at this table and see some data where we have got different beta values. Let's say from 0.7, which is a low beta value, and going up to 0.8, 9, 1.0,
and then 1.45. And all these beta values are giving us some expected returns. And you can see that in the second column, which has got a heading of returns, that the return of an investor is increasing. जैसे जैसे बीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रिटर्न की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. ये वैल्यूज रिटर्न की हमने कैसे कैलकुलेट की? This is done by putting these beta values in that SML equation that we have discussed earlier. यानी ये वही इक्वेशन है कि expected return is equal to RF plus risk premium into beta. उसी इक्वेशन में क्योंकि R M minus RF which is the risk premium constant रहेगा और RF की वैल्यू भी constant रहेगी, तो जैसे जैसे बीटा तब्दील होता चला जाएगा वैसे वैसे उस इक्वेशन की वैल्यू तब्दील होती चली जाएगी. एंड दिस इज व्हाट वी कैन सी इन द कॉलम ऑफ रिटर्न्स, that as the beta value is going up, you can see that the expected return on that portfolio is also going up. Now let's have a look at the graph of this security market line. This is actually the security market line. ये security market line ग्राफ पे जो हमें नज़र आ रही है, ये असल में उसी टेबल की वैल्यूज़ को लेकर बनाई गई है. On the x-axis, you can see that there are beta values 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 onwards till 1.6. और बीटा की इन वैल्यूज़ के साथ हमारे इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ रहा है. This is what you can see on the y-axis. You can see that it starts from 0% to 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. Now, if I want to see the expected return of an investor at a certain value of beta, all I need to do is कि मैं उस वैल्यू ऑफ बीटा के ऊपर मूव करूं, उस लाइन तक जाऊं और वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस की तरफ लगाऊं कि जहां पर हमारा रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो है. तो उस पॉइंट पर जहां पर बीटा की एक गिवन वैल्यू होगी, लेट्स से 1.3, तो 1.3 बीटा के होते हुए हमारा रिटर्न कितना होगा? लेट्स से इट इज 10.2%. So that would show that with a given value of beta, what will be the expected return. And you can see the inclination of this security market line. ये ऊपर की तरफ जा रही है. जैसे जैसे बीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे expected return on the portfolio भी बढ़ता जा रहा है. अगर हम इस security market line को, इस ग्राफ को मज़ीद वाई एक्सिस की तरफ एक्सटेंड करते चले जाएं, तो यू कैन सी दैट एट सम पॉइंट इट विल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस. यानी ये लाइन जो है वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी. उस पॉइंट के ऊपर बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर हम इस लाइन को लेफ्ट पे एक्सटेंड भी करें, तो जब बीटा की वैल्यू 0 होगी तो वाई एक्सिस पे रिटर्न की वैल्यू 0 नहीं होगी. And that will be the risk-free rate of return. So concluding our discussion on security market line, let's say that security market line is a line which is between different values of beta and the expected return. How do we get these values? We use the equation of security market line, which is also called the CAPM equation. जिस इक्वेशन के अंदर हम आर एफ की कांस्टेंट वैल्यू और रिस्क प्रीमियम की कांस्टेंट वैल्यू के अंदर मुख्तलिफ बीटा की वैल्यूज़ डालते चले जाते हैं और हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की वैल्यू आती चली जाती हैं. इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करते हैं और जो लाइन हमारे पास आती है दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी मार्केट लाइन, एंड इट सिंपली शोज द एक्सपेक्टेड रिटर्न of an investor with different values of beta.